السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار گجرات کے غلام، وزیر اعظم اور اڈانی ممبئی کو لوٹنے آ رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں اتحاد کو کامیاب کریں، ریونت ریڈی کی انتخابی مہم۔ سیاست میں قتل نہیں خودکشی ہوتی ہے، اونچی کرسی پر بیٹھ کر کردار اونچے نہیں ہوتے۔ راجندر نگر میں ضمنی انتخابات ہوں گے، کے ٹی آر کا دعویٰ۔ ورنگل کے پروگرام میں 22 نئے مہیلا شکتی بھون کا افتتاح کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی تنقیدوں کا منہ توڑ جواب دیں، صدر پی سی سی کی پریس کانفرنس۔ اور گھروں سے قیمتی اشیاء کا سرقہ کرنے کے 2 واقعات میں پولیس کی بروقت کارروائی۔ کالا پتھر اور کارخانہ پولیس نے ملزمین کو پکڑا اور مسروقہ اشیاء برآمد کر لی۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست الگ الگ ہے لیکن ہم سب ایک خاندان والے ہیں، ہم سب کو مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ریونت ریڈی نے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے لیے ہفتے کے دن قریب 4 جلسوں میں مہم چلائی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ چھترپتی شیواجی کے بارے میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ ملک کے 6 بڑے شہروں دہلی، بنگلور، چنئی، کولکتہ اور حیدرآباد میں بی جے پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ممبئی میں بھی بی جے پی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ناتھ شندے اور اجیت پوار گجرات کے غلام بن چکے ہیں۔ اس طرح کے موقع پرستوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کو
लूटने के लिए गुजरात से वज़ीर आज़म और अदानी आ रहे हैं। किसान खुशहाल होंगे तो रियासत खुशहाल रहेगी। तेलंगाना हुकूमत ने साबित कर दिया है कि वो किसान हुकूमत है। तेलंगाना में 6 गारंटियों पर एक के बाद एक अमल किया जा रहा है। इंतखाबात आएंगे और जाएंगे। इस बार महाराष्ट्र में इंतखाबात नहीं बल्कि जद्दोजहद है। इस इंतखाबात में इत्तेहाद को कामयाब करने के लिए एक फौजी की तरह काम करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बैग और उनकी गाड़ी की महाराष्ट्र में तलाशी ली गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। बीआरएस पार्टी और बीजेपी की तरफ से मुसलसल तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तेलंगाना कांग्रेस पार्टी आला कमान का एटीएम बन चुका है। महाराष्ट्र को तेलंगाना से रकम पहुंचाई जा रही है। इस तनाजुर में उनकी तलाशी को अहमियत दी गई है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि सियासत में कत्ल नहीं बल्कि खुदकुशी होती है। कांग्रेस के बास लीडर्स की बीआरएस पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए केटी रामाराव ने राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ का हवाला दिया और कहा कि प्रकाश गौड़ ने भी बीआरएस पार्टी से इन्हराफ करते हुए सियासी खुदकुशी कर ली है। मूसा प्रोजेक्ट पर केटीआर ने एक बार फिर तंज करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी मूसा लूटो दिल्ली में बांटों पर अमल कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी को अगर वज़ीर आला बरकरार रहना है तो उन्हें दिल्ली को पैसों से बैग्स भेजने पड़ेंगे। केटीआर ने कहा है कि ऊंची कुर्सी पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, किरदार ऊंचा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी के साथ ये टेक्निकल मसला है। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अवाम के लिए केसीआर की सदारत में जद्दोजहद करेगी। इन्होंने कहा कि राजेंद्र नगर में ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो बीआरएस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। राजेंद्र नगर को मुस्तकबिल में आगे ले जाने वाले कायद कार्तिक रेड्डी होंगे। ఇవాళ కేసీఆర్ గారు అంటే ఒక వ్యక్తి కాదు, టీఆర్ఎస్ అంటే ఒక సామాన్య శక్తి కాదు. కొంతమంది కలలు కంటున్నారు, పిచ్చి కలలు కంటా ఉన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు నిన్న మొన్న మాట్లాడుతున్నారు, కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేస్తా, బీఆర్ఎస్ను ఫినిష్ చేస్తా. నేను రేవంత్ రెడ్డికి ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేస్తా అని చెప్పి నీలాగా 24 ఏళ్లలో చాలామంది ప్రగల్భాలు పలికినారు, పిచ్చి ప్రేలాపనలు చేసినారు. ఇవాళ ఒక్కసారి చరిత్రలోకి తిరిగి తొంగి చూడు. కేసీఆర్ను ఫినిష్ చేస్తా అన్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఇక్కడ ఉన్నారా? ఇంకా వాళ్ళు ఫినిష్ అయినరా? ఒక్కసారి చూసుకోమని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కనుక ఆయన నడుం బిగించకపోతే ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి కూర్చున్న కుర్చీ, రేవంత్ రెడ్డి కూర్చున్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అనే కుర్చీ ఇవాళ ఉంటుండేనా? ఒక్కసారి ఆలోచించాలని చెప్పి కూడా నేను మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. ఇవాళ అధికారము, పదవులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు ఇవన్నీ తాత్కాలికంగా ఉండొచ్చు, రేపు ఉండకపోవచ్చు. కానీ ప్రజల గుండెల్లో స్థానం శాశ్వతం. అది కేసీఆర్ గారికి మాత్రమే సొంతం అనే మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఆయన కొన్ని సాంకేతికపరమైన సమస్యలు ఉన్నాయి, అందుకే ఎత్తైన కుర్చీలో కూర్చుంటున్నాడు. 2 కుర్చీలు వేసుకొని కూర్చుంటుండు. కొన్ని టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఎత్తైన కుర్చీలో కూర్చుంటే పెద్దగా అయిపోవు. నువ్వు ఎత్తైన కుర్చీలో కూర్చోగానే పెద్దోడు అయిపోవు. ప్రజల గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకోవాలి. काफी अरसे के बाद बीआरएस पार्टी में दूसरी पार्टी के लीडर की शमूलियत हुई है। राजेंद्र नगर मिनीगोंडा म्यूनिसिपैलिटी के कांग्रेस लीडर मिलाद्री नायडू और दूसरों ने तेलंगाना भवन में बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर साबिक वज़रा सबिता इंद्र रेड्डी, मोहम्मद महमूद अली के अलावा दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि बीजेपी और कांग्रेस में केसीआर के लोग मौजूद हैं। तेलंगाना भवन में पार्टी में शामिल होने वाले लीडर्स और कारकुनों से खिताब करते हुए कार्तिक रेड्डी ने कहा कि अगर आज इंतखाबात हों तो कांग्रेस पार्टी को 5 निशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी। कार्तिक रेड्डी ने कहा कि आज कांग्रेस कारकुनों की हालत पर अफसोस होता है। 10 साल से वो सिर्फ झंडा उठाए थे और फिर जब इख्तिदार मिला तब भी उनकी हालत नहीं सुधरी। दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आया हुआ शख्स चीफ मिनिस्टर बन गया
اور دوسرے لیڈرز وزیر بنا دیے گئے. حقیقی کانگریسی کارکن کو کچھ نہ مل سکا. تلنگانہ کانگریس کے صدر مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ عوام کی حکومت جشن کا ورنگل سے آغاز ہوگا. ورنگل ضلع کے اہم قائدین کا اجلاس منعقد ہوا. اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورنگل میں ہونے والے اس پروگرام سے تاریخ رقم ہونی چاہیے. پچھلے 10 سال سے دستور کو باز رکھ کر حکمرانی کی گئی. BRS کی 10 سال کی حکومت میں جو پروگرام نہیں کیے گئے ان کو 9 ماہ میں مکمل کیا جائے گا. کانگریس کا ہر رکن اسمبلی اپوزیشن کی تنقیدوں کا منہ توڑ جواب دیں. ضلع کیڈر ارکان اسمبلی میڈیا اجلاس منعقد کریں. ذات پات کی مردم شماری میں شمار کنندگان کے ساتھ رکن اسمبلی، کارپوریشن چیئرمین اور کارکن حصہ لیں. ورنگل میں منعقد ہونے والے پروگرام کی جگہ کو اندرما مہیلا شکتی سے موسوم کیا گیا ہے. اس پروگرام میں 22 نئے مہیلا شکتی بھون کا افتتاح کیا جائے گا. BRS پارٹی کے سابق رکن اسمبلی روہت ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ضدی فیصلے لے رہی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پولیس عہدیداروں کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کیا جا رہا. انہوں نے کہا کہ کسان تکلیف میں تھے اس لیے دھکم پیل ہوئی، کوئی سازش نہیں تھی. سابق MLA P نریندر ریڈی واقعے کے وقت موجود نہیں تھے. نریندر ریڈی کو سازش کے تحت جیل میں ڈالا گیا. BRS حکومت نے ماضی میں 14,000 ایکڑ اراضی کو فارماسٹی کے لیے مختص کیا تھا. مزید اراضی حصول کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ نریندر ریڈی کے جیل جانے کے پیچھے مہیندر ریڈی کا ہاتھ ہے. نریندر ریڈی کو فوراً رہا کیا جائے. مہیندر ریڈی کو اپنے خاندان سے محبت ہے تو فوراً MLC اور چیف ویپ کے عہدے سے مستعفی ہو جائیں. رکن کونسل کودنڈرام نے کہا ہے کہ VRA کے مسائل کی یکسوئی کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. VRA JAC کا ریاستی سطح کے اجلاس میں کودنڈرام دانشوروں، ریونیو عہدیداروں، ملازمین تنظیموں اور عوامی تنظیموں نے شرکت کی. کودنڈرام نے اس موقع پر کہا کہ VRA نے جو وعدہ کیا تھا اس پر فوراً عمل کرتے ہوئے 3,679 افراد کو ملازمتیں فراہم کرنے کی اپیل انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت جو سروے کر رہی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے VRA حکومت کے ساتھ تعاون کریں اور اسے کامیاب بنائیں. ان کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا. تلنگانہ کانگریس پارٹی کے رکن اسمبلی M سیمیول نے کہا ہے کہ 10 سال تک BRS پارٹی ریاست کو گدھ کی طرح نوچ کھائی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عوامی حکومت چلانے والے ریونت ریڈی کو تنقید کا نشانہ بنانے کا حق KTR کو نہیں ہے. KTR کے باپ دادا بھی آ جائیں حکومت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. حکومت بھی خاموش نہیں بیٹھے گی. KTR کسان ہیں تو کس جگہ ہل چلائیں گے اس کا خلاصہ کریں. کشن ریڈی موساتاس میں قیام کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ حکومت کے کاموں میں رکاوٹ پیدا نہ کریں. مرکزی وزیر کو یہاں کیا کام، وہ ملک کا دورہ کریں. انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کی صفائی ہو کر رہے گی. سیکریٹریٹ کے فائر سروس ڈپارٹمنٹ نے سیکریٹریٹ میں SPF کے اہلکاروں کے لیے ایک شعور بیداری پروگرام منعقد کیا. سیکریٹریٹ جو پہلے تلنگانہ اسپیشل پولیس کے تحفظ میں تھا اب اس کو SPF کے حوالے کر دیا گیا. GV پرساد اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ فائر آفیسر، جینیا اسٹیشن فائر آفیسر A یادیا نے آگ بجھانے کے لیے بنیادی معلومات اور آگ بجھانے والے آلات کے بارے میں اور ان کے استعمال سے متعلق تفصیلات بتلائیں. فائر آفیسر نے SPF اہلکاروں کو آگ سے بچنے کے طریقہ کار بشمول آگ سے حفاظت اور روک تھام کے بارے میں بتایا. برونٹو اسکائی لفٹ کے ذریعے چھت سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں مظاہرہ کر کے بتایا گیا. سیکریٹریٹ کے چیف سیکیورٹی آفیسر دیوداس اور SPF کے عملے نے شعور بیداری پروگرام میں حصہ لیا. سنگاریڈی ضلع محکمہ اقلیتی بہبود آفیسر D دیوجا نے کہا کہ حکومت تلنگانہ مائنورٹیز اسٹڈی سرکل حیدرآباد کے زیر اہتمام بیرونی ممالک میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے ٹوفل GRE/IELTS امتحانات کے لیے مفت کوچنگ فراہم کر رہی ہے، جس کے لیے اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے اہل امیدوار سے درخواستیں مطلوب ہیں. خواہش مند امیدوار اپنی درخواست 18 نومبر تا 30 نومبر 2024 شام 5 بجے سے قبل مطلوبہ دستاویزات، تمام تعلیمی سرٹیفکیٹس کی نقل کاپیاں، SSC انٹر ڈگری، آدھار نقل کاپی،
2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल, तीसरी मंजिल जामिया निजामिया कॉम्प्लेक्स, गन फाउंड्री एबिट्स, हैदराबाद पर दाखिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 और ईमेल ID डायरेक्टर रूम्स ccc.telangana@gmail.com पर तमाम अय्याम कार में सुबह 10:30 बजे तक शाम 5 बजे तक रब्त पैदा कर सकते हैं। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती और कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज व हॉस्पिटल के लिए नई इमारत और मौजूदा इमारत की तज़ीन नौ के लिए 80 करोड़ रुपए की रकम मंजूर हुई है। निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के इजलास में कमेटी के सदर नशीन व रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने कॉलेज और दवाखाने की कारकर्दगी का जायजा लिया। कॉलेज की प्रिंसिपल शहजादी बेगम, कॉलेज के सुप्रिटेंडेंट और दीगर आला ओहदेदार शरीक इजलास थे। इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि कॉलेज और हॉस्पिटल की मखलूआ जायदादों की निशानदही की गई है। इन जायदादों पर फौरी तकर्रात के लिए ज़िला कलेक्टर और महकमा आयोश के आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी का फैसला लिया गया है। फिजियोथेरेपी के आलात तो हैं लेकिन कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। 2 मर्द 2 खातून फिजियोथेरेपिस्ट की फौरी ज़रूरत है। इसके अलावा दीगर स्टाफ जिसमें क्लास 4 एडमिनिस्ट्रेटिव दीगर मखलूआ जायदादों पर तकर्रात के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। इन्होंने कहा कि इस दवाखाने से हर रोज़ औसतन 1000 मरीज रुजू होते हैं। हॉस्पिटल की खिदमात को बेहतर से बेहतर बनाने की वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने बताया कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर मौजूदा इमारत की तज़ीन नौ और नई इमारत के लिए 80 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की गई है। बहुत जल्द कामों का आगाज होगा। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने मुतल्लका कॉरपोरेटर्स, सुदूर मोतमदीन, मजलिस इब्तिदाई और दीगर सरगर्म कारकुनों के हमरा जहानुमा ता चिराग अली नल नई सड़क की तामीर का जायजा लिया। इन्होंने बताया कि गौशाला से चूने की भट्टी मिस्रीगंज के दरमियान सड़क मुकम्मल हो गई है। अलबत्ता चूने की भट्टी से दरगाह हजरत याहिया पाशा क़िबला रहमतुल्लाह अलैह चिराग अली नल तक काम गैर मुकम्मल रहा। इस काम को 99 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है। इन्होंने कहा है कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में हल्के के तमाम बलद डिवीज़न में अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जा रही है। तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जा रहा है। सदर मजलिस ने अपने MP फंड से 40 लाख रुपए की रकम दरगाह हजरत शाह राजू कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह के इलाके में सीवरेज लाइन डालने मुख्तस की है। इस काम को भी जल्द शुरू किया जाएगा। जनूबी शहर में सड़कों की तोसी के कामों के सिलसिले में सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग के आला ओहदेदारों के साथ एक जायज़े इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में नागाबाउली ता दबीरपुरा, कमान शेख फैज़ ता दबीरपुरा, याकुतपुरा बड़ा बाजार ता भवानी नगर और आरामगढ़ जंक्शन ता हसन नगर सड़कों की तोसी की निशानदही करते हुए इसको हतमी शक्ल दी गई है। इजलास में जनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों जैसे हिम्मतपुरा, ताफते दरवाज़ा, इंजन बौली और वट्टेपल्ली, शास्त्रीपुरम, वरमगड्डा और दीगर इलाकों में सड़कों की तोसी के लिए जायदादें हवाले करने वालों को रकमी अदायगी और दीगर उमूर पर भी नुमाइंदगी की गई है। इजलास के बाद रुकन कौंसिल ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से सड़कों की तोसी का मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसको मंजूर भी करवाया गया है। इस मास्टर प्लान की आजिलाना तकमील के लिए मुतल्लका ओहदेदारों के साथ ये इजलास मुनक्किद किया गया। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में सिक्योरिटी एजेंसी के तहत काम करने वाली सिक्योरिटी गार्ड्स के तनख्वाहों में किस वजह से कटौती की जा रही है और उनकी तनख्वाहें ना देने पर मुलाजमीन ने दफ्तर के रूबरू धरना दिया है। इस माह की तनख्वाह बराबर नहीं दी गई। इन्होंने दफ्तर के सामने धरना दिया। सिक्योरिटी कंपनी के इंचार्ज भी वक्त पर हाजिर नहीं हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स 3 शिफ्ट में काम करते हैं।
कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए मिनरल वाटर की तैयारी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स ने चंद्रायन गुट्टा के हुदूद में फुलबाग में बिना इजाज़त और गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे मिलावटी वाटर प्लांट पर धावा करते हुए 6,528 पानी की बोतलें जब्त कर ली। पुलिस ने बताया कि मिनरल वाटर के नाम पर यह पानी फरोख्त किया जा रहा था। इस धावे के दौरान जीएचएमसी और रेवेन्यू के ओहदेदारों को भी इत्तला दी गई। दावे के दौरान जब्त की गई मिलावटी पानी की बोतलों पर बार्ली बिस्लरी के स्टिकर चस्पा किए गए थे। वाटर प्लांट मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरवाजा खोलकर एक मकान से मुख्तलिफ कीमती अशिया का सरका करने वाले एक मुजरिम को कालापत्थर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 13 और 14 नवंबर की दरमियानी शब चंदूलाल बारादरी उमर सुपरमार्केट के बाजू एक मकान से 1,45,000 रुपये नकद और सोने और चांदी के जेवरात के अलावा मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया का सरका किया गया था। दूसरे दिन कालापत्थर पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस के सीनियर ओहदेदार सीनियर डीसीपी शेख जहांगीर, एसीपी एम ए जावेद के अलावा इंस्पेक्टर कालापत्थर मोहम्मद आसिफ और सब इंस्पेक्टर शेख सलीम और दूसरे ओहदेदारों की एआनत से तलाशी मुहिम शुरू की गई। मुलजिम मोहम्मद नूरुल्लाह हुसैन उर्फ नूर, जो गौसनगर बंडलागुड़ा चंद्रायन गुट्टे का साकिन है, को ताड़बन के इलाके में मुश्तबा हालत में देखा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। इसके कब्जे से मसरूक़ा अशिया बरामद कर ली गई। मुलजिम ने बताया कि घर की खिड़की खुली थी, उसने अंदर झांक कर देखा तो 3 अलमारियां थीं। उसने इस मौके को गनीमत जाना और अंदर दाखिल हुआ और देखा कि मकीन महव ख्वाब थे। उसने अलमारी खोलकर कीमती अशिया रकम का आसानी से सरखा कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। कारखाना पुलिस ने मुकफ्फल घरों की निशानदेही करते हुए सरका करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत के मसरूक़ा अशिया, जिसमें सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर अशिया शामिल हैं, बरामद कर ली। बोइनपल्ली महात्मा नगर का रहने वाला 30 साल कल्याण कुमार, जो कोरियर बॉय के तौर पर काम करता है, ने अलवाल टेम्पल इलाके के श्रीनिवास नगर कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत को देखा जहां दरवाजे पर कुफल लगे हुए थे। उसने अतराफ के माहौल को देखा और एक लोहे के राड के जरिए कुफल तोड़कर अलमारी से रकम और जेवरात का सरखा कर लिया। एक और वाक़े में उसने कारखाना इलाके के ओल्ड वासवी नगर में भी G+4 एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इस इमारत में लगे CCTV कैमरे के सबब मुलजिम की निशानदेही कर ली गई। इंस्पेक्टर वी रामकृष्णा की क़यादत में पुलिस की टीम ने तहकीकात की और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूक़ा अशिया को बरामद कर लिया। मुख्तलिफ फंक्शन हॉल्स में फ़ोटो वीडियो लेने वालों के कीमती कैमरों का सरका करने वाले 2 मुलजमीन को गुड्डी मलकापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मसरूक़ा कैमरे बरामद कर लिए। गुड्डी मलकापुर पुलिस के हुदूद में वाक़े गुड्डी मलकापुर के अलावा कुलसुमपुरा, अतापुर, मीरपेट, मेरादियोपल्ली, राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में जहां कई एक फंक्शन हॉल्स हैं जहां तकारीब के दौरान फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, उनके बैग से तकरीब के दौरान उनकी कीमती कैमरे चुराने वाले 2 सारिक प्रवीण कुमार और भिक्षापति को, जो पेशे से फोटोग्राफर हैं, को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से मसरूक़ा कैमरे बरामद कर लिए गए। इन दोनों मुलजमीन को मुगल का नाले इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान रोका गया। उनके पास मसरूक़ा बाइक थी, वो बाइक छोड़कर भागने लगे, तब पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। पुलिस उन्हें इब्तिदा में बाइक चोर समझ रही थी, लेकिन बाइक के सरक़े के अलावा इस इलाके के फंक्शन हॉल्स में काम में मसरूफ़ फ़ोटो और वीडियोग्राफर के कीमती कैमरों का भी सरका वो कर रहे थे। इंस्पेक्टर गुड्डी मलकापुर बी राजू की क़यादत में सब इंस्पेक्टर महबूब बादशाह और उनकी टीम ने मुलजमीन को गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर साउथ वेस्ट जोन ने गुड्डी मलकापुर पुलिस के ओहदेदारों और अमले की सताइश की है। गुड्डी मलकापुर PS लिमिट्स में हमारा लोग व्हीकल चेकिंग कर रहे थे, हमारा क्राइम टीम। दोनों मुजरिम ये प्रवीण कुमार और भिक्षापति एक चोरी का व्हीकल बजाज 2 व्हीलर पे जा रहे थे, हमारे लोग पकड़ लिए। शेख आके उसके ऊपर इंक्वायरी करे, वो व्हीकल वो इब्राहिमपट्टनम में एक चोरी करे ये लोग। उसका ताल्लुक से हम पुलिस स्टेशन लेके आके और फर्दर इंक्वायरी करें तो हमारा ये मालूम हुआ ये लोग
प्रोफेशनली फोटोग्राफर है इन्हों प्रवीण कुमार, ये कारवान के रहने वाले हैं। उनका साथी भिक्षपति, ये भी कारवान के रहने वाले हैं। प्रवीण कुमार इससे पहले इनका एक शॉप है, डिजिटल शॉप, फोटो शॉप शादनगर में। ये दोनों फंक्शन हॉल्स अटेंड करके फंक्शंस में फ़ोटोज़ निकालते थे। अब ये लोग क्या करें, बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता ये लोग चोरी करना शुरू करे। जो फंक्शन हॉल्स में फ़ोटोग्राफर्स बिज़ी रहते, वो लोगों के बैग में अगर लेंसेस और कैमरास बाजू रख लेके वो लोग बिज़ी रहते थे। ये लोग चोरी करके बाज़ार में जो रिसीवर्स को बेचते थे। ये ताल्लुक से पूरा 6-7 पुलिस स्टेशनों में केसेस रजिस्टर हो गए। इब्राहीमपट्टनम, कुलसुमपुरा, अत्तापुर, गुड़ीमलकापुर, राजेंद्र नगर, मइलारदेवपल्ली, मीरपेट, ये पूरे हम अभी तक एक बाइक और रिकवर करे, चोरी का बाइक, एक कैमरा रिकवरी करे, 6 लेंसेस भी रिकवरी करे। ये रिसीवर्स के बारे में और फर्दर इंक्वायरी चल रहा है। वो लोगों को पकड़ने के बाद हम आपको इतला दे देंगे। मणिकोंडा के पुपलागुड़ा में अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लगने का वाकया पेश आया। गोल्डन ओरियन अपार्टमेंट में सिलेंडर से गैस के अखराज के बाद धमाका हुआ और आग लग गई। मुतासरा फ्लैट के मकीन फौरी बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस वाक़े से पूरे अपार्टमेंट में सनसनी और अफरा तफरी देखी गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुँच गया और काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया। 3 फायर इंजन्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। तकरीबन 50 लाख रुपए की मालियत का साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। शमशाबाद फ्लाईओवर पर एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक नौजवान पुलिस से बचने के दौरान हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद फ्लाईओवर पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम जारी थी और इस दौरान एक बाइक सवार नौजवान पुलिस की जांच से बचने के लिए रॉन्ग साइड जाने लगा। इस दौरान तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी। नौजवान की मौके वाक़े पे ही मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 बाइक्स के तसादुम में 2 नौजवान जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके वाक़या पहुंची और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुतल्लका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हज़ार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद।
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुजरात के गुलाम, वजीर आजम और अदानी मुंबई को लूटने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इत्तेहाद को कामयाब करें, रेवंत रेड्डी की इंतखाबी मुहिम। सियासत में कत्ल नहीं खुदकुशी होती है, ऊंची कुर्सी पर बैठकर किरदार ऊंचे नहीं होते। राजेंद्र नगर में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, केटीआर का दावा। वरंगल के प्रोग्राम में 22 नए महिला शक्ति भवन का इफ्तिताह किया जाएगा। अपोजिशन की तनकीदों का मुंह तोड़ जवाब दें सदर पीसीसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और घरों से कीमती अशिया का सरका करने के 2 वाक़यात में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। काला पत्थर और कारखाना पुलिस ने मुलजिमीन को पकड़ा और मसरूका अशिया बरामद कर ली। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।